ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت۔ افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ۔ جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی میں مہارت ثابت۔ فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت استعمال کرنے کی تیاری۔ پاک امریکہ افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ سے دونوں ممالک کی دفاعی شراکت داری پر کام کیا گیا اور اس حوالے سے اہم اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دیا۔ مشق نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ انسپائرڈ گیمبٹ 1995 سے جاری دو طرفہ تربیتی سلسلے کی 13ویں کڑی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر بیان۔ پاک امریکہ مشترکہ مشقوں نے بھارت کو آگ لگا دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی شدید تنقید کی زد میں۔ بھارتی کانگریس نے مودی سرکار کی نام نہاد سفارتی کامیابیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ جے رام رمیش نے امریکہ کی جانب سے پاکستانی فوجی قیادت کی تعریف بھارتی بیانیے کے لیے دھچکا قرار دے دی۔ معروف امریکی جریدہ بھی سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف کا حامی۔ بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارت کا پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنانا ناقابل قبول ہے۔ اقدام کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کا نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ نے صورتحال واضح کر دی۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بھارت کی انڈر-19 ٹیم بھی بڑوں کے نقش قدم پر۔ تعصب اور تنگ نظری عروج پر انڈر-19 ورلڈ کپ میں بھارتی کپتان کا بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ ٹاس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی ٹھان لی۔ آئی سی سی وفد میں شامل بھارتی آفیشل کو ویزا دینے سے صاف انکار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی سی سی کا وفد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے بات چیت کے لیے ڈھاکہ جانا چاہتا ہے تاکہ اسے بھارت میں میچز کھیلنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے کے بعد سے دونوں بورڈز میں کشیدگی برقرار۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کا انکشاف۔ ملزم قانون کے شکنجے میں۔ منظور کالونی سے گرفتار کیا جانے والا ملزم 6 سال سے معصوم بچوں کو حوث کا نشانہ بنا رہا تھا۔ مرکزی ملزم کو متاثرہ بچے کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا، ساتھ ہی زیر حراست۔ متاثرہ بچے نے ملزم کو شناخت کر لیا۔ کئی متاثرہ بچوں سے حاصل ڈی این اے بھی ملزم سے میچ کر گئے۔ ملزم کا کئی بچوں سے زیادتی کا اعتراف۔ ملزم عمران منظور کالونی میں ٹائر پنکچر کی دکان چلاتا تھا۔ عدالت نے 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید دھند کے باعث المناک حادثات۔ 27 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 100 بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش۔ بچوں سے زیادتی کے کیسز ناقابل برداشت قرار دے دیے۔ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد عدالت میں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید دھند کے باعث المناک حادثہ۔ 29 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ سرگودا میں ٹرک نہر میں گر جانے سے 14 افراد جان سے گئے۔ ٹرک میں سوار افراد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ گوادر میں اور ماڑا کے قریب مکران کوسٹل ہائی وے پر کوچ الٹ جانے سے 10 افراد جاں بحق، 36 زخمی۔ سانگڑ میں ٹرک نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا، 2 بھائی زندگی ہار گئے۔ دھند کے باعث لاہور اور سیالکوٹ میں حادثات میں 3 افراد کی جان لے لی۔ پرتشدد مظاہروں کے شکار ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر چڑھائی نہ کرنے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ کارروائی نہ کرنے پر خود کو قائل کیا، کسی اور ملک نے نہیں۔ ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر کا ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے امریکی صدر کو ایران میں مظاہروں کے دوران اموات اور نقصانات کا ذمہ دار قرار دیا۔ حالیہ امریکی بغاوت کا مقصد ایران کو نقصان پہنچانا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ۔ ایران کے اندرونی حالات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔
बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफा मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें खत्म करवाने का जिक्र। पाकिस्तानी वजीर आजम का ये कहना कि आपने 1 करोड़ जानें बचाई एक बड़ा एहसास है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब दावा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म किया और गजा जंग के खात्मे से मशरक़ वस्ता में अमन कायम हुआ। अमरीकी मईशत पर कि सऊदी अरब, कतर और UAE अब अमेरिका में $6 खरब की सरमायाकारी कर रहे हैं। गजा आमन मंसूबे के अगले मरहले में गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का ऐलान। कोई मुसलमान या अरब नाम शामिल नहीं। ट्रंप ने खुद को सरबरा मुकर्रर कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। वजीर खारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर भी बोर्ड में शामिल। मुतनाज़ा किरदार साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, मार्क रोविन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा। गजा के लिए इंतजामी कमेटी के नाम भी सामने आ गए। क़यादत फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शुआस के सुपुर्द। तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान, अमाराती वजीर रहमुल हाशमी, कतरी सिफारतकार अली अल सवादी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की 80वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की मेज़बानी में अहम इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर करार दिए। आलमी तनाज़ात के हल के लिए UN चार्टर कलीदी अहमियत का हामिल करार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़म्न में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ले जो हुई है क्योंकि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया हुआ था सुपीरियर कोर्ट्स ने। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट पे। जब उन्होंने केस वापस लिया मैंने नोटिफाई कर दिया। ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं नहीं करूंगा। नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर के तकर्रुरी में किसी भी शख्सियत के किरदार का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत में मामला होने के बायस महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार हुआ। सरदार अयाज सादिक़ी अपोजिशन को पार्लियामेंट में आकर अपना किरदार अदा करने और कमेटियों का हिस्सा बनने की दावत। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ किसी को बात नहीं करने दूंगा। अपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर का दो टोक पैगाम। सिंध शर्जील इनाम मेमन का इंतखाबात तक इल्ज़ाम तराशी और मनफी सियासत न करने का मशवरा। ऐवान सदर में मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं थी। सिंध हुकूमत अपने इक़दामात से पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। निजी ISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा के साथ एक खुसूसी निशस्त। मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा और तालिबात से मुलाकात। कौमी और इलाक़ाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। तलबा और तालिबात ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। CTD हैदराबाद का जामशरू में छापा। कलअदम तंजीम के बैनर्स, प्लेक कार्ड्स और मुल्क मुखालिफ मवाद बरामद। CTD हुक्काम के मुताबिक ये मवाद पाकिस्तान मुखालिफ रैली में इस्तेमाल होना था। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से सोने की स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। कस्टम्स हुक्काम ने मजमूई तौर पर 100 तोला सोना और $11,900 जब्त कर लिए। मेयर कराची ने शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी। BRT के मुख्तलिफ पोर्शंस की तामीर इस साल जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। मुर्तज़ा वहाब का एक्स पर पैगाम। आवाम तक महंगाई के असरात किसी सूरत नहीं पहुंचने देंगे। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट
दायरा कार बतदरीज दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू, कहा सूबे के 35 शहरों का 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी है। प्रोजेक्ट से अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमरीकी वफ्द का दौरे लाहौर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग दी। बताया कि पंजाब में सनतों को डैशबोर्ड से मुंसलिक कर दिया गया। तमाम शहरों में एयर क्वालिटी बेहतर बनाई जा रही है। सूबे में सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। वफ्द ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम को खूब सराहा। 27वीं ITCN एशिया 2026 का आगाज। डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब लाएगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 27,000 से ज़ायद टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में डिजिटलाइज्ड हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लोगों को ऑनलाइन इलाज की सहूलत मैसर होगी। डिजिटलाइज्ड हेल्थ सेंटर माँ और बच्चे की सेहत के लिए तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। हेल्थ केयर के निज़ाम को तबाही के दहाने पर करार दे दिया। लाहौर में वसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया और पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करा दी गई। रिपोर्ट में शहर सुर्ख, जर्द और सब जोन में तकसीम, 10 साल डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही, सिर्फ कॉटन डोर, रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त और पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की तजवीज़। बसंत के दौरान शहर में 5,000 मुख्तलिफ रिक्शे चलाए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी। बारात में लीगी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और अहले खाना की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने भी बारात की रौनक बढ़ाई। वलीमा कल जाती उम्रा में होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तफरीही मकाम नलतर में बर्फबारी से फंसे मुतादिद सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रूस के जजीरे कामचाटका पर बर्फबारी का कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। घर और गाड़ियां कई फुट मोटी बर्फ की तह में दब गईं। लोगों को निकालने के लिए सुरंगें खोदनी पड़ी। 2 अफराद हलाक। बीजिंग में 2026 की पहली बर्फबारी। शहरियों की बड़ी तादाद में तफरीगाह पहुंच गई। बर्फ से ढके पार्क में सयाहों का रश। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड को अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम करार दे दिया। आर्कटिक जजीरे के मामले पर नेटो के साथ बातचीत करने का भी दावा। डेनमार्क की दरख्वास्त पर यूरोपीय ममालिक ने फौजी दस्ते ग्रीनलैंड के जजीरे पर तैनात कर दिए। जर्मन फौजियों समेत यूरोपीय ममालिक के फौजी एहलकार ग्रीनलैंड पहुंच गए। इसराइली हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट करते हुए गिर गया। हंगामी लैंडिंग के बायस खराब होने वाले हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट करके ले जाया जा रहा था। अमरीकी बॉल पर सिंगल ना लेना, अगले ओवर की स्ट्राइक खुद लेना है। स्टीव स्मिथ के फैसले ने बाबर आजम को गुस्सा दिला दिया। किंग बाबर नाराज, आउट होने के बाद गुस्से का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने दुरुस्त किया या गलत, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद कैनेडियन प्रीमियर लीग का मैच होकर रहा। मैच के दौरान 2 बार फील्ड से बर्फ हटाना पड़ी। ओटावा और क्योलरी के दरमियान सनसनीखेज मैच बराबर रहा। सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तैयारियां मुकम्मल। दरगाह को रोशनी और फूलों से सजा दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू। लाहौर में 17 रोज़ा पेंटिंग नुमाइश सज गई। फनकारों ने जिंदगी के रंगों को कैनवस पर बिखेरा तो हर कोई देखता रह गया।